اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل نمبر 4، بدبختوں کے نفوس کی جائے بازگشت کے بیان میں، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، پس جس نے سرکشی کی اور دنیاوی زندگی کو پسند کیا، بے شک اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور نیز فرمایا ہے دوزخ کی آگ میں اس بدبخت کے سوا کوئی اور نہیں ڈالا جائے گا جس نے آیات الہی کو جھٹلایا اور اس سے پھر گیا۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، واضح رہے کہ راہ مواد کے چلنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نیک بخت، دوسرے بدبخت۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے خاص قدم ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، اور ایک خاص راہ ہے جس کی یہ سیر کرتے ہیں، اور ہر ایک کے لیے ایک خاص جائے بازگشت ہے کہ ان قدموں میں وہ راہ طے کر کے اس جائے بازگشت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب نیک بختوں کے پھر دو گروہ ہیں، ایک خاص، دوسرے عام۔ عام تو نفس و حرص کی مخالفت، لذتوں اور شہوتوں کی ترک کے قدموں، شریعت کے فرمان کی پیروی اور سنت کی مطابقت کی راہ چل کر آٹھوں بہشتوں اور ان کے درجات کو پہنچ جاتے ہیں، کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرا اور نفس کو خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ بے شک و شبہ بہشت ہے۔ اور جو خواص ہیں وہ یحبہم کو قدم سے یحبونہ کی راہ میں قد صدق اور مقام اندیت کی جائے بازگشت کو پہنچتے ہیں، کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ بہشت کے باغوں اور نہروں میں سچی عزت کی جگہ بادشاہ دو جہان قادر مطلق کے مقرب ہوں گے، جیسا کہ مفصل طور پر پہلے بیان ہو چکا ہے۔ بدبختوں کے بھی دو گروہ ہیں، ایک کم درجے کے بدبخت اور ایک اعلیٰ درجے کے بدبخت۔ جو کم درجے کے بدبخت ہیں وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض گناہگار ہیں، جو خواہشات نفسانی پر جمے رہے اور فرمان حق کی مخالفت کرتے رہے، اور نفسانی لذات کو پورا کرنے کے لیے نافرمانی کر کے دوزخ میں پہنچے۔ پس جس نے نافرمانی کی اور دنیاوی زندگی کو پسند کیا، اس کا ٹھکانہ بے شک و شبہ دوزخ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو چیز زیادہ میری امت کو دوزخ میں لے جائے گی وہ منہ اور شرمگاہ ہے، یعنی منہ سے لقمہ حرام کھانا اور حلال کے کھانے میں اسراف کرنا، اور شرمگاہ سے حرام کاری کرنا، اور شہوت رانی کے لیے طرح طرح کے ظلم و فساد میں پڑنا۔ لیکن جو اعلیٰ درجے کے بدبخت ہیں وہ کافر اور منافق ہیں، جو ہماتن دنیا کی طلب اور اس کے منافع میں مشغول ہیں۔ وہ ڈور ڈانگروں کی طرح اپنی ساری ہمت نفسانی اور حیوانی لذتوں، شہوتوں اور نعمتوں پر خرچ کرتے ہیں، اور دینی اخروی کاموں اور راہ آخرت سے روگردانی کرتے ہیں، اور جنہوں نے باقی رہنے والی نعمتوں کو فنا ہونے والی عیش کے عوض برباد کر دیا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ جو دنیا کی کھیتی کی خواہش کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ کم درجے کے بدبخت اور اعلیٰ درجے کے بدبخت میں فرق یہ ہے کہ اگرچہ کم درجے کے بدبخت فرمان حق کی مخالفت اور حق تعالیٰ کی نافرمانی کی بدبختی میں گرفتار ہیں، لیکن ان کے دل قبول ایمان اور تسلیم فرمان حق کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ انہیں زبانی اقرار اور دلی تصدیق کی دولت حاصل ہوتی ہے، اگرچہ ارکان کے عہد میں نقصان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ وعید حق کے مطابق دوزخ میں تو جائیں گے، کہ لیکن وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے، جہاں پر وہ مارے مصیبت کے گدھے کی طرح چلائیں گے، اور جب تک زمین و آسمان ہے وہ اسی میں رہیں گے، مگر جسے تیرا پروردگار چاہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ اور شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہاں نہیں رہنے دیں گے، الا ماشاء ربک کے مطابق آخر کار دوزخ سے خلاصی پا جائیں گے اور اپنی اصلی جائے بازگشت یعنی بہشت میں آ جائیں گے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ایک گروہ کو دوزخ کے جلے ہوئے کوئلے کی حالت میں نکالا جائے گا، اور پھر اس کو نہر الحیات میں لے جایا جائے گا، جہاں پر گوشت اور چمڑا نیا پیدا ہوگا، اور ان کے چہرے بدر کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ سے آزاد کر دیا ہے۔
लेकिन आला दर्जे के बदबख्त वो हैं जो हमेशा और अब्दुल अबाद तक दोज़ख में ही रहेंगे और उनमें ला इलाहा इल्लल्लाह का नूर नहीं होगा कि उसके वसीले खुलासी पा सकें, और ना ही वो शफाअत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लायक होंगे। सिर्फ ऐसे शख्स ही हमेशा दोज़ख में रहेंगे, जैसा कि फरमाया है, दोज़ख में नहीं डाला जाएगा मगर वो बदबख्त जिसने जुटलाया और पीठ फेर किया। मोमिनों के लिए दुरूद होगा कि उनमें से बाज़ ऐसे भी होंगे जो उसमें आकर उतरेंगे, यानी थोड़े अरसे के लिए पड़ेंगे लेकिन उसमें तकलीफ नहीं उठाएंगे। सिर्फ आला दर्जे के बदबख्त होंगे, जैसा कि ला युसल्लीहा इल्लल अशका से जाहिर है। बदकार, गुनाहगार और काफिर वगैरह में से हर एक को उसके चाल चलन के मुवाफिक दोज़ख के मुख्तलिफ दर्जे मिलेंगे, जैसा कि पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक अबू तालिब दोज़ख के पहले दर्जे में होंगे, यानी सिर्फ पांव के तलवों पर आग का असर होगा। और सबसे कम दर्जे का अजाब यह है कि सिर्फ उसके पांव के तलवों को आग का असर महसूस हो, लेकिन उस आग का असर इस कदर होगा कि मगज में सर भी जोश मारने लगेगा। मुनाफिकों के हक में अल्लाह ताला जल्ला शानहू फरमाते हैं, बेशक मुनाफिक दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे। कुफर में फर्क है और निफाक में भी। इनमें हर एक की राह और जाएबाज गश्त अलग अलग है। तकलीदी काफिर और हैं और मुहक्किक काफिर और। जिस तरह के अहले ईमान में भी बास मुकल्लिद हैं और बास मुहक्किक। जिस तरह मुहक्किक के ईमान को मुकल्लिद के ईमान पर फजीलत हासिल है, इसी तरह मुहक्किक काफिर का अजाब मुकल्लिद काफिर से कहीं बढ़कर होगा। तकलीदी कुफर तो यह है कि वालिदैन से बतौर तकलीद हासिल किया जावे कि हमने अपने बाप दादों को एक खास उम्मत पाया और हम भी उन्हीं के कदमों के निशानात की पैरवी करते हैं। जो कुछ उन्होंने अहले शहर और विलायत और माँ बाप से देखा या सुना, उसी की तकलीद करते रहे और उसी की खवारी में पड़े रहे। वो तो दोज़ख के पहले दर्जे में होंगे। दरअसल कुफर इस बात का नाम है कि जो कुछ उन्हें वालिदैन से बतौर तकलीद हासिल हुआ है, उस पर कनात न करके अकल के मुवाफिक कार्रवाई करने में तकलीफ और मेहनत बर्दाश्त की जाए और अलूम कुफर में उम्रें बसर की जाए और किताबें हिफ्ज की जाए और मुजाहिदा और रियाजत में मशगूल रहकर तस्फिया दिलो नफ्स की कोशिश की जाए और अकली दलाइल और बराहीन से ऐसे शुबहात हासिल करें जिनसे साने हकीकी की नफी और साने नाकिस का इस्बात हो, और कहें कि वह मुख्तार नहीं और आलिम की जुजियात में नहीं और ना ही जहान का पैदा करने वाला है, ना ही उसका मौजिद है और उसको असर नौ पैदा करने वाला, बल्कि खुद मौजिब और मौसर है। और जहां उसका असर है, मौसर असर पर मुकद्दम होता है, ना बिलाज तकद्दुम ज़मानी। इससे ख्वाहिश ये हो कि जहां कदीम है और बाकी है, उसको फना नहीं होगी, और कहें कि हक ताला जहान को फना कर देने पर कादिर नहीं और दूसरे जहान को पैदा करने से आजिज है। जो कुछ जालिम लोग अल्लाह ताला की निस्बत कहते हैं, अल्लाह ताला उससे बहुत बुलंद है। इस किस्म के कुफर को शैतान उनकी नजरों में आरास्ता करता है और उनके नफ्सों में गुरूर पैदा कर देता है कि मारिफत और हिकमत का कमाल तो इसी में है, और जो शख्स इस पर एतकाद नहीं करता वो मुकल्लद है, नबीना है, ताकि अंबिया का सहारा ले। और नेज़ कहते हैं कि तमाम अंबिया हकीम थे। जो कुछ उन्होंने कहा अज़रुए हिकमत कहा, लेकिन जाहिलों से उनकी समझ और उनके हौसले के मुवाफिक गुफ्तगू की। उनको कहा कि हम खुदा के रसूल हैं और जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे पास आता है और खुदा का पैगाम लाता है और खुदा की तरफ से हमारे पास किताब लाया है, और ये कि दरअसल किताबें उन्हीं का कलाम है और शरी आकाम सब पैगंबरों ही ने बनाए, जिनकी बिना कानून हिकमत के मुवाफिक मुसालहत खल्क पर मबनी थी। और उन्होंने जो कुछ खलकत को कहा बतौर इशारा कहा और इससे मानी और लिए। जिब्राइल से मुराद काम करने वाली अक्ल थी और मीकाइल से मुराद फायदा रिसा अक्ल, जिन्होंने अक्ल कुल से फायदा उठाया और माकूल मानी सीखे और नफ्से मुदरिका और नफ्से नातिका को आगाही देते थे। ये लोग इसी किस्म के और बुरे बुरे ख्यालात और तोहमात और शुबहात खड़े करते हैं और दूसरों की मन गढ़त बातें कबूल करते हैं, क्योंकि वह नफ्सानी ख्वाहिशों के मुताबिक होती हैं। इस वास्ते के नफ्स खुद अज़रुए जबिल्लत काफिर है। बेशक नफ्स बुरी बातों का हुक्म करता है, और जब इन शुबहात को दलाइल और बराहीने माकूल नुमा के साथ सुनता है तो जानो दिल से उनको मानता है। इसके शुबहात
इसकी तबीयत से मुआफिकत खा जाते हैं, यहाँ तक कि उस कुफ्र का इकरार कर लेता है और नफ्स दीन और शरअ से ज्यादा इनकार कर जाता है। बस कुफ्र का इकरार और दीन का इनकार नफ्स के लिए 2 कदम है जिनसे दोज़ख से सबसे निचले तबके में पहुंच सकते हैं। 2 ही कदमों से वहां पहुंच जाता है। और ये आफत आजकल मुसलमानी में बहुत हो गई है, क्योंकि बहुत से बदअसल खबीस नफ्स इस किस्म के अलूम में मशगूल है और उसका नाम इल्मे असूल दीन रखा हुआ है, ताकि कोई शख्स उनके अकीदे की खबासत और उनके मामले की बुराई से वाकिफ न हो जाए। और जमाने के बहुत से तालिब इल्म जिनको दीनी उलूम की खबर नहीं या आलिम यकीन का नूर उन्हें हासिल नहीं, इल्म की तलब में सफर इख्तियार करते हैं और बेहुदा तकलीफें उठाते हैं। इत्तेफाकन जब किसी ऐसे फलसफी के पास जा फंसते हैं, क्योंकि आजकल के मदारस बिल अमूम ऐसे ही फलसफियों के सुपुर्द हैं, तो वो उसी किस्म के इल्म उसे सिखाते हैं और बतदरीज ये कुफ्र की बातें उसकी नजरों में आरास्ता करके दिखाते हैं और उसके दिल में इस इल्म की तहसील और इस कुफ्र और गुमराही का एतकाद, जिसका नाम उन्होंने इल्म हिकमत और उसूल रखा हुआ है, उसे दिलाते हैं। और वो बेचारा नातजुर्बाकार दीन के हकायक और अहले यकीन के मुकामात से बेखबर इस जहालत में फंस जाता है और वो इस धोखे में आ जाता है कि किसी दिन मुहक्किक बन जाएगा। हाँ, अलबत्ता कुफ्र में मुहक्किक हो जाता है और तकलीद से खुलासी पा जाएगा, मगर तकलीद ईमानी से वो खवास में से हो जाता है, लेकिन शैतान का खवास बनता है। और जो आम समझ का बेचारा आदमी उनमें से किसी की सोबत में आ जाता है, तो उस कौम के मर्द और नफ्स और दम की वजह से उसके ईमान में 1000 तरह के शक व शुबहे और नुकसान और खलल पैदा होते हैं। और बहुत दफा ऐसा हुआ है कि इन कुफ्र की बातों के लिए आमादा हो जाते हैं और इन कुफ्रों की तकलीद को कबूल कर लेता है और बिल्कुल दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और ये बदइतिकादी उनके वसीले दूसरों में असर कर जाती है, जैसा खारिशी ऊंट दूसरे ऊंटों को बिगाड़ देता है। किसी बादशाह को भी इस बात का ख्याल नहीं आया कि इस मुसीबत को दूर करे या इस खलल को रफा करे। ये आफत उन 20 सालों में पैदा होकर शाया हुई और कुव्वत पकड़ गई, लेकिन पहले वक्तों में किसी को इस बात की मजाल न थी कि इस किस्म की बातों को जाहिर करे, बल्कि हमेशा अपने गुर को पशीदा रखा करते थे। इस वास्ते के अहले दीन में परहेजगार, खुदा तर्स इमाम हुआ करते थे और बादशाह दीनदार, जो कि दीन को ऐसी अलाइशों से तय गए बेतरे के वसीले महफूज रखा करते थे। अभी थोड़े अरसे का जिक्र है कि चंद मशहूर फलसफियों को कत्ल किया गया और उसको जहाद अकबर जाना। इस ऐत में परहेजगार इमाम बहुत कम है जो दीनी उमूर में हिस्सा लेते हैं और इस किस्म की बातों को बादशाह की खिदमत में पेश करते हैं। इसलिए इस बात का खौफ है कि दीन के बारे में जो कैरो काल बास के दिलों में है वो भी रही सही उठ जाए और जहान में कुफर का जिक्र मजकूर हो जाए और जो मुसलमानी की हकीकत है वो दिलों में न रहे। इल्ला माशाअल्लाह, जुबानों में भी इसकी बू आती है कि ना रहेगी, यानी सुनने में भी आया है। इन्हीं अहवाल की नहुसत है कि हक ताला ने अपने कहरो गजब को तातार के काफरों की सूरत में भेजा है, ताकि जिस तरह मुसलमानी उठ गई है ये चंद बेमानी सूरतें भी उठ जाएं। मिस्रा, अब ये हालत है कि दिन ब दिन इन मलूनों का कलबा मकर और हीला तरक्की पर है और अहले इस्लाम की गफलत और गुनाहगारी ज्यादती पर। जो कुछ आदमियों के हाथों ने कमाया, इसके सबब खुशकी और तरीबे फसाद जाहिर हुआ। हुक्म परवरदिगार के लिए है, हम अल्लाह के हैं और उसी की कज़ा पर राजी हैं। नफाक भी अलग अलग है, एक निफाक इस्लाम में है और एक कुफ्र में। इस्लामी निफाक तो वो है जिसकी बाबत पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 खसलतें हैं, जिसमें ये 3 खसलतें हैं वो मुनाफिक है, और जिसमें इन तीनों में से एक पाई जाए उसमें 2 दांग निफाक होता है। जब तक इन खसलतों को बिल्कुल तर्क न कर दे, खा वो नमाज पढ़े और रोजा रखे और कहे कि मैं मुसलमान हूं। और वो खसलतें ये हैं कि जब बात करे तो झूठ बोले और जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे, और जब अमानत उसके पास रखी जाए तो उसमें खयानत करे। एक और रिवायत के मुताबिक 2 और खसलतें भी निफाक में दाखिल हैं, यानी जब ऐद करे तो बेवफाई करे और अगर किसी से झगड़े तो फहश बके और गाली दे। ये मामलात अहले इस्लाम का निफाक हैं। और जो कुछ हकीकत है इन हदीसों में जिड़की वगैरह अहले इस्लाम के लिए जतला दी है। इस वास्ते बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें ये खसलतें
ना पाई जाती हों। दुआओं में पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, ऐ परवरदिगार, दुश्मनी, निफाक और बदअखलाकी से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। हम पर बदरजाए ऊला वाजिब है कि हमेशा ये दुआ करते रहा करें। कुफर का निफाक वो है जो तहरीये, तबी, तनासखी, मुबाही और इस्माइली करते हैं, जो मुसलमानों में रहकर ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनका इतिकाद बदस्तूर उन्हीं कुफरात और शुबहात पर होता है जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है। और जब अपने हम जिनसों से मिलते हैं तो अपना इतिकाद जाहिर करके कहते हैं कि हम इन मुकल्लदों को मखौल करते हैं। अल्लाह ताला इनके अहवाल की खबर देता है, और जब ये लोग अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए हैं, और जब अपने हम जोलियों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम तो तुम्हारे ही साथ हैं, हम तो सिर्फ उनसे मखौलबाजी करते हैं। दरअसल अल्लाह ताला उनसे मखौल करता है और उनकी सरकशी ज्यादा करता है, मगर वो इस बात को समझते नहीं। और जो काफिर कुफर को पोशीदा रखता है और जुबानी मुसलमानी का दावा करता है, वो भी उन्हीं में से है। और मुनाफिकों का अंजाम और जायबाज गश्त वही है जिसका जिक्र इस तरह पर है। मुनाफिकों का मुकाम दोज़ख का सबसे निचला दर्जा होगा और वहां पर उनका कोई मददगार ना होगा। दौलत इस्लाम की कदर कौन जानता है और नेमत ईमान का शुक्र कौन बजा ला सकता है। रुबाई, हजारों मुसीबतें और आफतें जो आदमी की राह में रखी गई हैं और कई अक़साम की आजमाइशों में मुब्तला किया है। अगर अल्लाह ताला की नजर इनायत उसकी फरियाद रसी और दस्तगीरी न करे तो दुनिया की आरामगाह से जो ज़य्यन लिन्नास से आरास्ता है और शहवात की मोहब्बत के बंदों से मजबूत जकड़ी हुई है, किस तरह खुलासी पा सकता है। खसूसन जबकि उस जाल पर अव्वलन वो सोने चांदी की थैलियां, उम्दा घोड़े, चौपाए और खेती बाड़ी के 7 दाने बखेरे हों। अगर इन 7 किस्म के दानों में से एक किस्म का दाना भी होता तो भी नफ्स चौपायों की तरह उसको खा लेता। आदम अलैहिस्सलाम को बावजूद इस कदर शर्फ व मर्तिबा के सिर्फ एक ही दाने के खाने से मना किया गया था, इस दरख्त के पास न जाना, लेकिन चूंकि मना रखने की तौफीक उसकी रफीक न बनी, इसलिए नसियान के जाल में फंस गया। आदम अलैहिस्सलाम ने नाफरमानी की और वो बहक गया। जब उसे इसी पर छोड़ दिया तो वह असा आदम उसकी सिफ्त थी, लेकिन जब उस पर अपना लुत्फ फरमाया तो उसकी सिफ्त अस्तफा आदम हो गई और बहिश्त उसका मकसूद गाह हो गया। जब तक तौफीक इलाही आदम अलैहिस्सलाम की रफीक न बनी, वही बहिश्त बेमंजिला जाल हो गया। शैतान ने एक दाने से 2 शिकार किए। इन दोनों को शैतान ने फुसलाया। दुनिया भी जाल का मुकाम थी, लेकिन जब तौफीक इलाही रफीक बनी तो यही दुनिया सिर्फ एक कलबे से मकसूद का मुकाम हो गई। रब्बना ज़लमना और सुम्मा अजलना के मकसूद को हासिल कर लिया। एक घड़ी लुत्फ़े इलाही की मदद न पहुंची तो उसी दम कायम न रह सका, लेकिन जब लुत्फ़े इलाही की मदद आन पहुंची तो कदमों पर कायम रहा। मुसन्निफ अलैहि रहमा के शायख फरमाते हैं, रुबाई और तर हकीकत जो जंजीरें और तौक बदबख्तों और आला दर्जे के बदबख्तों के लिए तैयार किए गए हैं, इन सब का सवाब उन्हीं 7 चीजों से दिया गया है। वज़ालिका मताल हयातुद दुनिया, दुनियावी जिंदगी के यही असबाब हैं, और दोज़ख के घटियल दर्जे जो उनके लिए खाली किए गए हैं। इन सब का सरमाया ज़य्यना लिन्नास की दुकान से लिया गया था। हुब्बुश शहवात की 7 शहवतों से दोज़ख के 7 दरवाजे खुल जाते हैं। लिया सबाते अबवाब, उसके 7 दरवाजे हैं और 7 मुख्तलिफ राहें उनकी तरफ जाती हैं। इन 7 शहवतों का बीज इंसान के 7 अज़ा में बो दिया और हवा से खमसा को उनकी तरबियत के वास्ते मुकर्रर किया, ताकि 15 साल के अरसे में हर दरख्त पर शहवत का फल लग जाए। बादशाह साहिब शरा को उसका आमिल बनाकर भेजा। उसने जाकर हर उस पर सुजूद का इखराज मुकर्रर किया कि मुझे इस बात का हुक्म हुआ है कि 7 अज़ा पर सजदा करूं, और फरमाया कि इन दरख्तों के फलों को सादत उखरवी का बीज बनाओ और अबूदियत की जमीन में शरीयत के हाथ से बोओ कि दुनिया आखिरत की खेती है। इनायत लाजजाली और आजमत जुल जलाल ने एक रोह को पैदाइश की शुरू ही से दर्जात की तरफ, वो लोग जो अपने परवरदिगार से डरते रहे, वो सब के सब बहिश्त की तरफ ले जाए जाएंगे कि बाग खींचने से। व अम्मा मन खाफा मुकाम रब्बहू की राह पर व नही नफ्स अनिल हवा के कदम से फ इन्नल जन्नता हियल मावा की जाए बाज गश्त को पहुंचा दिया।
और गैरत इलाही ने बेपरवाही की तेजी के सबब एक ग्रोह को पैदाइशी से दर्जात की कमी की तरफ कहर के चाबुक से जिन्होंने नाशुक्री की वो दोज़ख की तरफ धकेल दिए जाएंगे। अम्मा मन तगा की राह पर उसने दुनियावी जिंदगी को पसंद किया, बस उसका ठिकाना दोज़ख के कदम से दौड़ाया कि वो बहिश्त में है तो भी मुझे परवाह नहीं, और वो दोज़ख में है उनकी भी मुझे परवाह नहीं। अगर इनायत बेइल्लत जान के गिरबान से सर निकालती तो उसके कहर की कुमंद और उसके मकर की जंजीरों से किस तरह निकल सकते, और उसके तिलिस्मात आजम के बंद किस कुव्वत से तोड़ सकते। रुबाई सुलूक के तमन्ना के ख्याल को बादशाहों और सुल्तानों के सर नहीं चाहिए। हर एक मुफलिस कल्लाश गदागर के हाथ पांव से इस तरह की बड़ी फतह नहीं हो सकती। अलबत्ता अगर मक्कार शैतान के तसर्रुफ से खुलासी पाकर इस्लाम का लिबास और ईमान की पोशाक लेकर इस जान से जान बचाकर निकल जाएं, तो बेशक ये बड़ी भारी नेमत है। ऐ परवरदिगार, हमारा खातिमा ईमान और इस्लाम पर कर। रुबाई जिंदा करने के बाद मारने और मारने के बाद जिंदा करने में क्या हिकमत थी? इसका जवाब गाफिल और गुमगश्ता से सुनो जो कहता है। रुबाई वाज़े रहे कि आदमी की 5 हालतें हैं। अव्वल हालत अदम, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, यानी अदम के पर्दे में इंसान को इल्म हक में तो वजूद था, लेकिन उसे अपने वजूद की खबर न थी, ना ही यह अपना जिक्र था और ना ही मज़कूर। दूसरी हालत वजूद, जो आलम अरवाह में उसे हासिल हुई, जैसा कि फरमाया है, यानी जब अदम के पर्दे से आलम अरवाह में आया तो फिर उसे अपने वजूद का कुछ शऊर हुआ और अपना जाकिर और मज़कूर बना। तीसरी हालत वो जबकि रूह का ताल्लुक कालिब से हुआ, जैसा कि फरमाया है, वनूफ़िख़त फ़ीहि मिन रूही, उसमें मैंने अपनी रूह फौंकी। चौथी वो हालत जबकि रूह का ताल्लुक कालिब से जुदा होता है, जैसा कि फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक नफ्स को मौत चखनी पड़ेगी। पांचवी रूह का कालिब में दोबारा आना, जैसा कि फरमाया है, वो पाक जात है जो खल्क को पैदा करता है और फिर उसे वापस लाता है। ये पांचों हालतें इंसान के लिए जरूरी थीं ताकि ज़ात व सिफ़ात खुदाबंदी की मार्फत में अपने कमाल को पहुंच जाता और नेज़ खलकत के पैदा करने में जो अल्लाह ताला की हिकमत थी वो भी हासिल हो जाए। मैं एक छुपा खजाना था, बस मैं चाहता था कि पहचाना जाऊं। पहली हालत अदम तो इस वास्ते चाहिए थी कि जब आलम अरवाह में उसका वजूद असर नौ पैदा हुआ तो उसे अपनी हस्ती का शऊर हासिल हो जाए और अपने हदूद से आगाह हो जाए। इससे यह भी लाजिम आता है कि अपने बनाने वाले के कदम को पहचाने। दूसरी हालत यानी आलम अरवाह में आना इस वास्ते जरूरी थी कि इससे पेशतर के आलम अजसाम में आए और रूहानियत की सफाई में शहूद बेवास्ता का ज़ौक़ हासिल करे और बेहिजाब फैज़ से फैज़ उठाए और खिताब अलस्तु बिरब्बिकुम के सुनने का इस्तेहकाक और भला कहने की सादत का इस्तेदाद उसे हासिल हो। और जब बेवास्ता हम कलाम होने की दौलत उसे मिल जाए तो पहचान ले कि अल्लाह ताला मेरा परवरिश करनुंदा है और नेज़ उसकी बाकी सिफात यानी मुरीदी, हई, मुतकल्लमी, समी, बसीरी, आलमी, कादरी और बाकी वगैरह को पहचान ले जो कि ज़ाती सिफात है। अगर आलम अरवाह में उसका वजूद ना होता और आलम अरवाह में आए बगैर आलम अजसाम में आ जाता तो ना ही इन सिफात ज़ाती की हकीकी मारिफत उसे हासिल होती और ना ही उसे ये इस्तेहकाक होता कि आलम अजसाम में दूसरी मर्तबा तरबियत से रूहानी सफाई हासिल करता या ये कि खुदा की हम कलामी का मर्तबा हासिल करता। ये बीज इब्तिदा ही में बोने चाहिए ताकि अंजाम में ये फल हासिल हो सके। तीसरे रूह को कालिब से ताल्लुक होने की हालत भी जरूरी है ताकि कमालात मारिफत के अलात हासिल कर सके और उनके जरिए गैब व शहादत की जुज़वियात और कुल्लियात की वाकफियत हासिल कर सके। और इस हालत में हक ताला को रज़्ज़ाक, रहमान, रहीम, गफ्फार, सत्तार, नेमत दहिंदा, मोहसिन, वहाब और तवाब जाने और रूह की तरबियत में इन आलात की मदद से मारिफत में मुकामात को पहुंच जाए जो कि आलम अरवाह में हासिल नहीं हो सकते थे। और वो हस्बे ज़ैल हैं मुशाहिदात, मुकाशिफात, उलूम लुदनी, तजल्लियात, तसर्रुफात जज्बात, बारगाह इलाही में पहुंचना और तरह तरह के मुआरिफ जिनका कदरे कलील जिक्र तो ऊपर हो चुका है।
मगर उनकी शरह आसमान और जमीन में भी नहीं समा सकती। चौथे, रूह का कालिब से जुदा होना। इस हालत की जरूरत की दो वजूह हैं। एक ये कि जो अलाइश रूह को जिस्म की सोबत से हासिल हुई है वो मुफारिकत में आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर हो जाए, और जो उन्स और उल्फत उसे जिस्म से पैदा हो गई है उसे दूर कर दे और दोबारा रूहानी सफाई हासिल करे। और ये बात नेक बख्तों के अरवाह को हासिल होती है जो खुलासाए मौजूदात हैं, और ये कि उन सिफात के जरिए जो कालिब के औजार से हासिल किए हैं। कालिब की रुकावट बशरियत की अलाइशों बगैर और हकीकत की कदूरत बगैर बारगाह इलाही से मारिफत और कुर्ब हासिल कर सके। दूसरे ये कि मारिफ गैबी के और ज़ौक इन अलात के वसीले जो कालिब से हासिल किए हैं बेकालिबी की हालत में हासिल कर सके जो उसे आलम अरवाह में हासिल न थे। इस वास्ते कि अगर आलम इज्साम में उनके इदराक के अलात न थे तो उसका ज़ौक भी न रखता था, क्योंकि जो कुछ उसे मिलता वो कालिब के पर्दा पीछे से मिलता था, और वही कुछ अब कालिब की मुज़ाहिमत बगैर उसे मिलता है, जिससे लुत्फ दुबाला हो जाता है। फल की तरह के जब तक दरख्त पर होता है जैसे अंगूर, जरदालू, तब तक उनका खास ही जायका होता है, और जब दरख्त से उतार कर कुछ मुद्दत धूप में रखे जाते हैं कि अंगूर का मुनक्का और जरदालू का कुश्ता बन जाए तो उनका और ही किस्म का जायका हो जाता है। अगरचे दरख्त पर भी उसे धूप तो लगती थी, मगर चूंकि दरख्त पर था इसलिए दरख्त की तभी खासियत के सबब आफताब की मदद से कुछ जमा करना था, और उसमें रतूबत और खिटास बाकी थी। अब जबकि दरख्त का वसीला बीज से उठ गया तो मुनक्के और कुश्ते का मजा और ही हो गया, जो दरख्त की रुकावट बगैर आफताब की तरबियत से उनमें पैदा हो गया। इब्तिदा में अंगूर को तरबियत हासिल करने के लिए दरख्त की जरूरत थी। अगर दरख्त ना होता तो महज आफताब के तसर्रुफ से अंगूर पैदा ना हो जाता, और जब अंगूर दरख्त पर पक जाए तो दरख्त पर ही रहकर वो मुनक्का नहीं बन सकता, बल्कि ऐसा करने के लिए अंगूर को दरख्त से उतार कर धूप पे उसकी परवरिश करनी चाहिए ताकि मुनक्का मीठा हो जाए। बस इसी तरह रूह को अमलों के फलों की परवरिश के लिए कालिब के दरख्त की जरूरत थी। जब दरख्त होने की कमालियत को पहुंच गया तो जब तक कालिब के दरख्त पर रहा, अगरचे इनायत हक का आफताब उसकी परवरिश करता रहा, लेकिन फिर भी कालिब के दरख्त की तभी खासियत से अमलों का बादल मुजाहिमत करता रहा। वो मेरे दिल पर पर्दा सा डालता है, और जो ज़ौक मारिफ गैबी का उसे हासिल होता था वो कालिबी सिफात की रतूबत और खटास बगैर न होता था। अब रूह को फल की तरह कालिब के दरख्त से उतार कर नजरे इलाही की धूप में रखना चाहिए ताकि इस धूप का असर कालिब के दरख्त के वसीले बगैर उस पर अमल करे, क्योंकि इब्तिदा में जबकि इंसानी दर्जे की कमालियत को नहीं पहुंचा था, आलमी अरवाह में इन नजरों के तसर्रुफात के काबिल न था, और नेज़ ये कि ज़ाहिरी मौत बगैर अल्लाह ताला की बमय्यती यानी मारने वाली सिफ्त का हकीकी आरिफ नहीं हो सकता। इसमें बड़े गहरे इसरार हैं जिनकी मुफस्सल कैफियत बड़ी बड़ी किताबों में नहीं समा सकती। पांचवें, रूह का दोबारा कालिब में आना। ये इस वास्ते जरूरी है कि इसमें इंसान का कमाल है, क्योंकि ऐसा करने से गैब व शहादत और दुनिया और आखिरत के तमाम मुल्कों में खिलाफत खुदाबंदी से मुतसर्रिफ होता है, और दोनों जहान की गूनागून नेमतों से बदरजा कमाल फायदा हासिल करता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीजें तैयार रखी हैं जिनको ना आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना, और ना ही इंसान को उनका कभी वहमो गुमान हुआ। ये नेमतें बाज रूहानी है और बाज जिस्मानी। जो जिस्मानी है उनमें दूसरे अलाते जिस्मानी बगैर तसर्रुफ नहीं कर सकते। बस दुनियावी फानी कालिब को नूरानी और बाकी आखिरत की सूरत में उठाएंगे कि कयामत के दिन जमीन और जमीन में तब्दील हो जाएगी। अगर वही कालिब होगा तो उसी सूरत में होगा, लेकिन इस तरह का नहीं होगा। दुनियावी कालिब तो चार अंसरों मट्टी, हवा, पानी और आग से बना था, मगर पानी और मट्टी उस पर गालिब थे कि चिमट जाने वाली मट्टी से, और ये दोनों महसूस और कसीफ हैं जिनको आंख देख सकती है, और हवा और आग दोनों लतीफ और नामहसूस हैं जिनको आंख नहीं देख सकती। कालिब में ये दोनों मगलूब हैं। इसी कालिब को आखिरत में, जो कि आलिम लतीफ है, बनाएंगे तो इन चार अंसरों से, मगर वहां हवा और आग को मट्टी और पानी पर गालिब करेंगे, क्योंकि पहले दोनों लतीफ हैं और मुअख्खर जिक्र कसीफ, ताकि जिस्म निहायत ही लतीफ हो जाए। और दुनिया में जो नूर मोमिन के दिल में है, कयामत के दिन वही नूर उसके कालिब पर होगा। इनका नूर उनके सामने दौड़ता होगा
और कयामत के दिन बाज चेहरे सफेद होंगे और बाज स्याह का इशारा भी इसी वास्ते है। बस जबकि कालिब लतीफ और नूरानी होगा तो रूह के लिए रुकावट नहीं होगा। इस वास्ते कि जिससे रुकावट पैदा होती थी वो हमने उनके सीनों के खोट दूर कर दिए हैं कि तसर्रुफ से बाहर निकाल दिया जाएगा और वो इस आईने की तरह होंगे जिसके जौहर से खाक और कुदूरत साफ की गई हो और उसके ज़ाहिर व बातिन से दिखाई देता हो, ताकि ज़ाहिर व बातिन यकसां हो जाए, यानी वार पार दिखाई देता हो। कयामत के दिन बेद जाहिर हो जाएंगे क्या इशारा इसी तरफ है, यानी जो कुछ बातनों में है वो जाहिर हो जाएगा। शराब और शीशा दोनों रोशन हुए और वो दोनों हर बात में एक दूसरे के मुशाबा हो गए। यहां तक कि हदीस में आया है कि बेइज्जती की हड्डियों में बस अब उनके शफाफ होने के मगज तक दिखाई देगा। बस कालिब को इस लताफत से उठाया जाएगा ताकि आठों बहिश्तों की नेमतों से फायदा हासिल कर सके और इससे किसी किस्म की कदूरत पैदा ना हो जो मुशाहिदात रूह की मुज़ाहमत कर सके। और नेज़ ये भी है कि सूरती जिंदगी के वसीले बगैर अल्लाह ताला की जिंदा करने वाली सिफ्त के हकीकी आरिफ नहीं हो सकते कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे कि उनको वही जिंदा करेगा जिसने पहली मर्तबा उन्हें पैदा किया और रूह को उसके बाद के कालिब की सूरत में उसने पूरी परवरिश पाली थी और मारिफत के तमाम आलात हासिल कर लिए थे और कालिब से जुदा करके मुद्दतों आलमे गैब में नजरे इनायत की गर्मी में तरबियत पाने के सबब जिस्मानी अलाइश उससे दूर हो गई थी और आग ताला से बेवास्ता रिज्क उसे नसीब हुए कि और पूरी तरह से ताकत हासिल कर चुका था आलमे कालिब में भेजा ताकि आलात जिस्मानी के वसीले तमाम ममालिक में तसर्रुफ करे और बेवास्तगी के मुकाम में आलात जिस्मानी की मुज़ाहमत बगैर रूहानी नेमतों का लुत्फ उठाए और मारिफत और मुकाम इंदियत साहिब इक्तदार बादशाह के पास खास मुकाम में की कमालियत का ज़ौक हासिल करे। इस तरह के ना रूह अपने काम में लगी रहे और जिस्म अपने काम में, कोई और हालत इस हालत से हटा नहीं सकती। इस वास्ते नाताए हक का उन्वान इसका शुरू था कि जिंदा और ना मरने वाले बादशाह की तरफ से जिंदा रहने वाले ना मरने वाले बादशाह की तरफ। इस मुकाम में बंदगी और खुदाबंदी में ये फर्क है कि हक ताला इन मुमालिक में बगैर जरूरत आलात बतौर इस्तिकलाल और इसालत मुतसर्रिफ है और बंदा बेवसीला आलात बतौर नयाबत और खिलाफत मुतसर्रिफ है। वल्लाहु आलिम बिस्सवा व इलाहि मुरजाइल बाब। अल्लाह ताला बेहतर जानता है और उसी की तरफ लौट जाना और वापस जाना है। इसी कदर इशारा काफी है। इसरार इलाही को जाहिर करने की इजाजत नहीं, क्योंकि रबूबियत के इसरार का जाहिर करना कुफ्र है। जो समझ गया, जो ना समझा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।